हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ विनय यादव, मैथमेटिक्स मेंटोर। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। द टॉपिक नेम इज डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर टुडेज गोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रो, जिसके अंदर वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, एनपीआर एंड एनसीआर. Also, we will see the actual meaning of NPR and NCR along with examples, as well as we will see the relation between NPR and NCR. Suppose that we can move towards our main topic, and the topic name is division, wherein we will understand the concept of formation of groups. For formation of groups, we can see there are two categories, that is, the group size can be different as well as the group size can be same. Under both the conditions, we can see what are the concepts and what are the main points that we need to remember. Post that, we can move towards our next topic, and the topic name is distribution. So post formation of groups, we can see how we can distribute the number of groups. After that, we can move towards our numerical parts, wherein we can see some of the questions that are related to these topics, as well as we will see some of the questions from previous years asked question, that is from JEE Main as well as from JEE Advanced. So we have taken the question in such a way that by solving all the questions, we can be able to understand all the concepts very thoroughly. So let's start with the basic intro, that is factorial, NPR and NCR. To understand the topic, so as to start with the main topics, that is division and distribution. तो फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. फैक्टोरियल, it is denoted by this symbol or by this symbol. So factorial, it denotes, the symbol denotes is being denoted by these symbols. So what is the meaning of factorial? It is consecutive multiplication of first n natural numbers. For example, meaning of n factorial is equals to consecutive multiplication of first n natural numbers. We will multiply 1, multiply by 2, multiply by 3, and so on until n. So this will be n factorial. And some of the basic results are 1 factorial is equals to 1, and 0 factorial is going to be equals to 1. And also we can write n factorial equals to n into n minus 1 into n minus 2, and so on up to 3 to 1. So all these numbers are getting multiplied along with each other. So we can write it as n into n minus 1 factorial. So n factorial can also be written as like this. So factorial का मतलब होता है कि अगर हम लेट से बात करते हैं 5 factorial का, so we will multiply 1, multiply by 2, multiply by 3, 4, multiply by 4, multiply by 5, so as to get the value of 5 factorial. So अगर हम कुछ factorial वैल्यू कैलकुलेट करें, तो लेट से 2 factorial वैल्यू हो जाएगी 2 into 1, या फिर 1 into 2, that is equals to 2. So likewise 3 factorial will be equals to 1 multiply by 2 multiply by 3, and that is going to be equals to 6. 4 factorial will be 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4, and this value is going to be equals to 24. Likewise 5 factorial will be equals to 5 into 4 factorial. We have seen this result here, and multiply by n minus 1 factorial. This is going to be equals to 5 into 4 factorial की value होती है 24. So this can be written as 120. And so on. So 6 factorial की value हो जाएगी यहाँ पे 6 into 5 factorial, that is 6 into 120 is equals to 0. 6 to the 12 carry 1, that is 720. Like this, we can be able to write the factorial. We can calculate the value of n factorial. So now moving towards next topic, that is, this is factorial. The second terms which we often use in the chapter permutations and combinations are NPR. तो NPR क्या मतलब होता है और कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है यहाँ पे n और r. तो n will take the value natural number, r will take the value whole number. Also relation between r and n is r की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू n होगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NPR की वैल्यू कितनी हो जाएगी. सो NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. सो दिस आर द क्विक रिकैप सो एज टू मूव फॉरवर्ड. सो NPR की वैल्यू हो जाती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. इसका क्या मतलब होता है, we have n distinct objects, we need to select r objects from those n distinct objects. So this is the selection plus arrangement. So here order matters. Order is important. और समझते हैं इसमें कि ऑर्डर क्या मतलब होता है. एग्जाम्पल समझेंगे अभी. तो एनसीआर की बात करते हैं हम लोग. तो एनसीआर विल बी इक्वल्स टू
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसको समझने के लिए कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और नॉट इम्पॉर्टेंट क्या मतलब इसका, वी विल टेक वन एग्जाम्पल और ऑल्सो वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR ऑल्सो। So let's say we have three distinct objects and the objects name are A, B and C. तो समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। तो लेट्स से हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C। ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें इनमें से दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने हैं। नाउ वी नीड टू सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, 3P2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, साथ में 3C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। तो 3P2 हमें क्या देगा यहाँ से, इट विल बी, हमें यहाँ से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तीन ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो वी कैन सिलेक्ट A, B, दो ऑब्जेक्ट हो गए, या फिर हम क्या कर सकते हैं A और C ले सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको रिवर्स कर लेते हैं, या फिर B और A हो जाएगा, अदर विल बी A और C, या फिर C या फिर A हो जाएगा। लाइकवाइज हम ले सकते हैं B और C या फिर C और B। तो ये हो गया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसमें बात करते हैं 3C2 में। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले 3P2 में, तो A और B जो है दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, A और B। हम A और B से दो अरेंजमेंट बना सकते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट इज कि A पहले आए B बाद में आए, एंड द सेकंड अरेंजमेंट इज कि B पहले आओ A बाद में आए। सो हियर दिस इज फर्स्ट अरेंजमेंट, दिस इज सेकंड अरेंजमेंट। सो बट हियर वी हैव टेकन टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड, और हम दो ही ऑब्जेक्ट से क्या किए हैं, दो तरीके अरेंजमेंट के बना सकते हैं। बट इन व्हेन वी कैलकुलेट NCR, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखा हमने कि ऑर्डर क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है। सो हियर वी कैन सी हाउ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ NPR। तो ये हो गया हमारे पास दो अलग अलग अरेंजमेंट। बट हम जब कैलकुलेशन करेंगे NCR की, तो वहाँ पे हमारे पास ये दोनों अरेंजमेंट एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और B, दैट्स इट। We do not need to arrange it. We do not need to take B as first. Afterwards, we can take A as the second element, because order is not important here. Order is not important. Similarly, for these two objects, for these two arrangements, we will see only one arrangement here in while calculating the value of NCR. Likewise, here also we are taking B and C, and we have two arrangements. But while taking a value of NCR, we can see only one group, that is B and C. So basically क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे टोटल कितने अरेंजमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 अरेंजमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, 6 वेज। बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 3 वेज आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम NPR के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है उसमें ऑलरेडी हम अरेंजमेंट के भी केसेस देख पा रहे हैं। मतलब 3P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम 3P2 कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हम दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम अरेंज भी कर रहे हैं। जो इसका आंसर आ रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब कि जब भी 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से हम जब दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके 6 तरीके होंगे जिस तरीके से जिनमें हम इसको सिलेक्ट भी करेंगे और इसको अरेंज भी करेंगे। बट द वैल्यू ऑफ 3C2 implies that we will form the number of groups by means of which we can calculate the value of NCR. तो अगर 3C2 की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब कि हमारे पास 3 टोटल वेज होंगे टू फॉर्म द ग्रुप्स कंटेनिंग 2 एट अ टाइम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन NPR एंड NCR। तो अगर हम इनमें रिलेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो रिलेशन हो जाएगा हमारे पास NPR इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं NPR में, जितने भी सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन मतलब NCR। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में अरेंज भी कर रहे हैं, दैट इज R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वी शुड रिमेंबर दिस। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो ये हो गई थोड़ी बेसिक सी बातें, और NPR और NCR में हमने देख लिया R हमेशा होल नंबर होगा और N हमेशा
नेचुरल नंबर होगा और जो r की वैल्यू होगी हमेशा लेस देन और इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होंगे हमारे। द फर्स्ट कंडीशन इज ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, देयर विल बी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर हमने देखा था कि हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं इसको, वेयर ग्रुप साइज इज डिफरेंट एज वेल एज द ग्रुप साइज आर सेम। So as of now we are going to study with group size is same, sorry group size is different, group size is different। तो जब भी ग्रुप साइज डिफरेंट होगा तो हम कैसे ग्रुप फॉर्म करेंगे उसको हम समझते हैं एक बार। तो लेट्स से हमारे पास एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास वी हैव 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर 4 डिस्टिंक्ट प्लेयर्स हमारे पास। लेट्स से प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 एंड प्लेयर 4, ये 4 अलग अलग प्लेयर है हमारे पास और हमें 2 ग्रुप बनानी है या फिर 2 टीम बनानी है इन सच अ वे दैट कि पहली टीम को टीम 1 या यहाँ पे हो जाएगा टीम 2। तो पहली टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर आना चाहिए और बाकी जो 3 प्लेयर है वो टीम 2 में आने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होंगे हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअल काउंटिंग करेंगे। एक्चुअल काउंटिंग करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको हम कैसे बना सकते हैं बिना सॉल्व किए इसको कैसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअल काउंटिंग में, अगर हम P1 को क्या करें पहले ग्रुप में डाल दें, पहले टीम में डाल दें, तो बच्चे कितने प्लेयर 3 प्लेयर एंड दोज आर P2, P3 एंड P4। तो इसको हम क्या करेंगे टीम 2 में डाल देंगे P2, P3 एंड P4। सिमिलरली हम P2 को क्या करेंगे टीम 1 में डालेंगे, तो हमारे पास कितने प्लेयर बचेंगे 3, और कौन कौन से वो तीनों प्लेयर वो हो जाएंगे P1, P3 एंड P4। उसके बाद हमारे पास P3 अगर हम लेंगे टीम 1 में तो हमारे पास अगला जो 3 प्लेयर बचेंगे वो हो जाएंगे P1, P2, P4। लाइकवाइज अगर हम P4 यहाँ पे लेंगे तो P1, P2 और P3 ऑटोमेटिकली टीम 2 में आ जाएंगे। टोटल कितने वेज पॉसिबल है हमारे पास यहाँ ग्रुप बनाने के, एंड दैट आर 4 वेज। तो हमारे पास 4 तरीके हैं। अगर हमारे पास 4 अलग अलग प्लेयर हैं, हमें 2 टीम बनानी है सच दैट कि एक टीम में एक प्लेयर आए और बाकी 3 प्लेयर दूसरी टीम में जाए। तो उसको हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें बिना काउंटिंग के सॉल्व किए तो हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं। हमें उसमें से अगर एक प्लेयर सेलेक्ट करना हो तो कितने तरीके हो जाएंगे, तो 4C1। अभी हमने देखा कि सिलेक्शन में क्या करते हैं, NCR यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं, उनमें से हमें सिर्फ एक प्लेयर सेलेक्ट करना है, तो 4C1 हो जाएगा। आफ्टर सेलेक्टिंग 1 प्लेयर हमारे पास कितने प्लेयर बच जाएंगे, 3 प्लेयर। तो हम क्या करेंगे, बाकी 3 प्लेयर में से 3 प्लेयर को चूज़ कर लेंगे, दैट इज 3C3। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 प्लेयर है, हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अगर उसमें से हमने 4 में से कोई एक प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाकी 3 प्लेयर सेलेक्ट हो चुके हैं इसी वैल्यू से। तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हमारे पास 3 प्लेयर और बच गए हैं। हमने क्या किया, उन 3 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया। अब बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं अगर हमें 2 इवेंट परफॉर्म करने हैं 1 by 1 साइमल्टेनियसली, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। वहाँ पे ये हो जाएगा 4C1 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 0 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दिस इज आवर आंसर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो हमने क्या किया, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से हमें एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। हमने क्या किया, 4C1 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट और बच गए, तो हमने क्या किया, उसमें 3 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया, दैट इज इसका तरीका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 4। टोटल आंसर विल बी 4। सो लाइकवाइज अभी हमने क्या किया, टीम साइज हमारा डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम एक प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 3 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ हमने 2 ग्रुप बनाया है। तो लेट्स से अगर हमें और भी ग्रुप्स बनाने हो, लेट्स से हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें से हमें 3 ग्रुप बनाने हो, तो क्या करेंगे, लेट्स सी। So before moving for the 3 groups, let's generalize the result for this which we have studied now. तो हमने क्या देखा इसमें कि हमारे पास अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो लेट्स से हमारे पास m+n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, अगर m+n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होगा हमारे पास, और हमें लेट्स से हमारे पास m+n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और हमें इसमें 2 ग्रुप बनाना हो, पहले ग्रुप में m एलिमेंट्स आए और दूसरे में n एलिमेंट्स आए।
तो अगर हम इसको रिलेट करें अपने एग्जाम्पल से, तो हमारे पास m प्लस n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 है, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास m प्लस n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें अगर m सिलेक्ट करना हो तो हो जाएगा m प्लस n सी m, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर दो ही ग्रुप में डिवाइड करना है तो ऑटोमेटिकली यही रिजल्ट हो जाएगा हमारा। या फिर हम चाहेंगे तो मल्टीप्लाई बाय, अगर m प्लस n में से हमने c एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए तो हमारे पास कितने बच गए, n एलिमेंट्स बच गए, और n में से हमें n सिलेक्ट करना है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो जब भी हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो या फिर m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टोरियल अपॉन फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है उसका फैक्टोरियल डिवाइड मल्टीप्लाई बाय सेकंड ग्रुप में जितने एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं और हमें दो का ग्रुप बनाना है, पहले ग्रुप में 4 एलिमेंट हैं और दूसरे ग्रुप में 6 एलिमेंट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, नंबर ऑफ वेज m प्लस n फैक्टोरियल, मतलब जितना टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 10, दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है तो 4, दैट इज 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। दिस विल बी आवर नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द ग्रुप्स। हम कितने तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, इतने तरीके से ग्रुप बना सकते हैं अंडर द कंडीशन दैट हमारे पास 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हों। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी शुड कीप रिमेंबर दिस दैट दिस ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे वर्ड जो है डिस्टिंक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अगर आइडेंटिकल होगा तो अलग केस हो जाएगा, बट वी आर स्टडिंग अबाउट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अगला एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हो और हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना हो, लेट्स से क्योंकि सेम हो जाएगा ग्रुप साइज, 5 और 3 के ग्रुप में डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, टोटल जितना होगा एलिमेंट उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप में जितने साइज है 5, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, दिस विल बी आवर आंसर। तो कहने का क्या मतलब हुआ, जितने भी ग्रुप्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाई पहले ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई दूसरे ग्रुप में जितने एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल। सो लेट्स मूव फॉर द सेकेंड फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि 3 अलग अलग ग्रुप में हमें डिवाइड करने हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो सब एग्जाम्पल समझते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जहां पे m इज नॉट इक्वल्स टू n नॉट इक्वल्स टू p। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब हमारे पास अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स बनेंगे। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से हम 3 ग्रुप बनाएंगे। पहले ग्रुप में m एलिमेंट्स आएगा, दूसरे ग्रुप में n एलिमेंट्स आएगा और तीसरे ग्रुप में p एलिमेंट्स आएगा। तो इसके केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, m प्लस n प्लस p। तो m प्लस n प्लस p में से हम क्या करेंगे, m ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतने तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे, टोटल c m। उसके बाद कितने बच जाएंगे हमारे पास, m निकल जाएगा तो कितने बचे हैं, n प्लस p। तो n प्लस p में से हम क्या करेंगे, बाकी n को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर n प्लस p में से हम n को सिलेक्ट कर लेंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, n प्लस p में से हमने n को सिलेक्ट कर लिया है तो टोटल बच गए p। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, p में से क्या करेंगे, p को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा रिजल्ट हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल। तो हमने क्या देखा था, n से क्या वैल्यू होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। सो वी कैन सी दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस n प्लस p माइनस m, दैट इज n प्लस p फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल मतलब m फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस p माइनस n, दैट इज p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। तो n प्लस p फैक्टोरियल कट जाएगा इससे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। तो हमने क्या देखा कि जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ग्रुप ए में जितने साइज आएंगे उसका फैक्टोरियल, ग्रुप बी में जितने साइज आएंगे उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ग्रुप सी में जितने एलिमेंट होंगे उसका फैक्टोरियल। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से।
तो लेट से हमारे पास अगर 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगेन डिस्टिंक्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास डिस्टिंक्ट, और हमें इसको 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट कि ग्रुप ए में क्या होगा, हमारे पास 2 एलिमेंट आ रहा है, और ग्रुप बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3, और ग्रुप सी में आ रहे हैं 5 एलिमेंट। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द ग्रुप्स, कितने तरीके से हम ग्रुपिंग कर पाएंगे इसका। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, m प्लस n प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। यहाँ से हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ग्रुप ए में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, इतने ग्रुप वेज होंगे ग्रुप फॉर्म करने के। सो वी हैव सीन द डेरिवेशन पार्ट हियर कि जब भी m प्लस n प्लस पी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, और उनको हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट कि ग्रुप ए में m एलिमेंट्स हैं, ग्रुप बी में n एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप सी में p एलिमेंट्स हैं। तो उसके समय हम क्या करते हैं, टोटल में से हमने क्या किया, p एलिमेंट को सिलेक्ट किया। तो कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग, m प्लस n प्लस पी सी m मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी आर, हमें क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स है जो हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट्स। वो सॉल्व करने में हमारे पास क्या आ रहा है, m प्लस n प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। तो एग्जाम्पल देखा हमने, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं एंड वी नीड टू डिवाइड इंटू 3 ग्रुप्स इन सच अ वे दैट in first group it is 2 elements, in the second group it is 3 elements, and in the third group it will be 2, but we can't say take the same। यहाँ हो जाएगा 1 3, यहाँ हो जाएगा अगेन 3। तो यहाँ हम क्या करते हैं 1 2 और 3 ले लेते हैं। देखिए हमें m n और p को क्या करना है, डिस्टिंक्ट रखना है, अलग अलग रखना है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इन सच अ वे। तो कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ पे ग्रुप फॉर्म करने के, 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस विल बी आवर आंसर। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस केस में हम कितने तरीके से ग्रुप बना सकते हैं वो हमने देख लिया, इस तरीके से बना सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक जहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप साइज क्या करेंगे, सेम करेंगे। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 ले पाए, उस केस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द सेम ग्रुप साइज, अगर हमें इसको जनरलाइज करना हो कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और उसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप साइज में, तो लेट्स से अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो कि हमारे पास 15 एलिमेंट्स हो और फर्स्ट ग्रुप में जा रहा है 1 एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप में जा रहा हो लेट्स से 2, थर्ड में जा रहा होगा 3, 3 + 2 + 5 + 6, 6 + 4 10, और ये हो जाएगा 5। तो मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स वी हैव एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 15 एलिमेंट्स इनटू 5 ग्रुप्स in such a way that group 1 has 1 element, group 2 has 2 elements, the group 3 has 3 elements and the group 4 has 4 elements, likewise group 5 has 5 elements। कितने तरीके के टोटल ग्रुप फॉर्म करने के, हम कैसे निकालेंगे इसको, द आंसर विल बी 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। दिस विल बी आवर नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द ग्रुप्स अंडर दिस कंडीशन। तो जब भी हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और मल्टीपल ग्रुप साइज दिए हों एंड वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फाइंड द ग्रुप्स, सो दिस विल बी आवर आंसर n फैक्टोरियल अपॉन ग्रुप ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसका फैक्टोरियल, ग्रुप बी में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसका फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय लाइक ग्रुप सी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका फैक्टोरियल, लाइकवाइज वी कैन सॉल्व इट। सो नाउ लेट्स मूव सो नाउ लेट्स मूव So now let's move towards the next topic, that is formation of groups when group size is same. Group size is same. जब ग्रुप साइज सेम होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, समझते हैं एग्जांपल से। अगेन लेट्स से वी हैव 4 players P1, P2, P3 एंड P4। 4 प्लेयर है हमारे पास, हमें 2 का ग्रुप बनाना है, दो प्लेयर का 2 ग्रुप बनाना है हमें। दैट इज टीम ए हैज टीम 1, टीम 2 इन सच अ वे दैट कि टीम ए में भी 2 प्लेयर आए और टीम 2 में भी 2 प्लेयर आए। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रुप साइज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दैट इज 2 का हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, तो हमारे पास ग्रुप साइज क्या हो गया, सेम हो गया।
तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर हम लेट से यहाँ पे P1 और P2 को सिलेक्ट करते हैं, दो प्लेयर को, तो जो बाकी दो प्लेयर बचेंगे वो किस में आ जाएंगे, टीम 2 में आ जाएंगे। तो कौन कौन से प्लेयर हैं, P3 और P4। अगर लेट से हम यहाँ पे P1 और P3 को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ कौन आ जाएगा, P2 और P4। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे P2 और P3 को लेते हैं, अगर P2 और P3, तो यहाँ आएगा P1 और P4। और अगर हम बात करें यहाँ पे P3 और P4 की, P3 और P4, तो यहाँ आ जाएगा P1 और P2। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रुप इसको P1 P2 यहाँ पे, P3 P4 यहाँ पे आ गया, या हम चाहे तो इसको रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, P3 यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, P3 और P4 को यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, P1 और P2 आ जाएगा। लाइक वाइज हम क्या कर सकते हैं, P2 और P4 को यहाँ ले सकते हैं, P2 P4, यहाँ कौन आ जाएगा, P1 और P3। सिमिलरली अगर हम P1 P4 को यहाँ पे ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, P2 और P3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, P1 P4 लेंगे टीम ए में, P1 P4, तो यहाँ आएगा P2 और P3। उसके हम क्या करेंगे, P1 P2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, सॉरी वी हैव ऑलरेडी P1 P2, हमने क्या किया, P1 P2 P3 P4, P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P4। फिर हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर लिया, P3 P4 को यहाँ पे ले लिया, P1 P2 यहाँ आ गया, फिर हमने P2 P4 को यहाँ लिया, P1 P3 यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, P1 और P4 को यहाँ लेंगे और P2 P3 यहाँ आ गया। अब फिर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, P1 P4 और क्या बचा, P2 P3। तो ये हमारा है एक्चुअल काउंटिंग। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 4 प्लेयर हैं एंड वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 4 प्लेयर्स इनटू 2 ग्रुप्स इन सच ए वे दैट ईच ग्रुप कंटेन्स 2 प्लेयर्स। तो हमने क्या किया, पहले ग्रुप टीम ए को क्या किया, हमने P1 P2 प्लेयर दे दिया, तो बचा P2 P3 और P4, तो हमने यहाँ पे दे दिया। लाइकवाइज हमने इस तरीके से इतना अरेंजमेंट कर लिया। तो टोटल कितने तरीके आ रहे हैं हमारे पास, टोटल 6 वेज आ रहे हैं, 6 तरीके हैं टोटल टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्लेयर्स एमंग 2 टीम्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे काउंट करें, अगर यहाँ पे ध्यान ऑब्जर्व करें, तो P1 P2 और ये वाला टर्म देखो, अब P1 P2 और P3 P4 जा रहे हैं 2 अलग अलग टीम्स में। तो एक बार क्या हो रहा है, P1 P2 टीम ए में आ रहा है और P3 P4 अगले टीम में जा रहा है। दूसरा काउंटिंग क्या आ रहा है कि P3 P4 जो हो रहा है वो यहाँ पे आ गया, टीम ए में आ गया, और P1 P2 वो आ रहा है टीम 2 के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि सेम प्लेयर्स जो हैं वो बस सफल्ड हो रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब कि काउंटिंग जो हो रही है वो 2 बार हो रही है, जबकि ग्रुप साइज क्या हो रहा है, एक ही बन रहा है। तो दीज आर नोन एज फॉल्स काउंटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स काउंटिंग। सिमिलरली हम देखें P1 P3 और P2 P4 जो हो रहा है वो भी आपस में सफल हो रहे हैं। P1 P3 यहाँ पे ये वाला ग्रुप्स अगर आप देखो, सिर्फ आपस ग्रुप्स दोनों प्लेयर सेम है, इस टीम के भी उस टीम के भी, बस आपस में क्या हो रहा है, सफल हो रहे हैं। सिमिलरली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो थर्ड प्लेयर हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, आपस में सफल हो जा रहा है। सो दैट्स मीन्स जितने प्लेयर हैं, कितने ग्रुप बन रही है, 2, मतलब कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, टीम 1 और टीम 2। ये है हमारा टीम 1, ये है हमारा टीम 2, इसके अंदर भी 2 प्लेयर हैं, इसके अंदर भी 2 प्लेयर हैं। तो हम इंटरनली कौन कौन को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि कितनी टीम बन रही है, 2 टीम। तो दोनों टीम को हम कितने तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 फैक्टोरियल तरीके से हमने अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, और हमें एक चाहिए था कि सिर्फ ये एक ही बार आए। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर हमारे पास 4 प्लेयर्स हो एंड वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट कि पहला टीम जो है वो उसमें 2 प्लेयर आ रहे हो, दूसरी टीम में भी 2 प्लेयर आ रहे हो। तो भाई जो अभी हमने पढ़ा है कि n फैक्टोरियल, अगर m प्लस n फैक्टोरियल होते हैं, m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो काउंटिंग दे रहा है कितना आ रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे फॉल्स काउंटिंग है वो भी इंक्लूड हो रही है। सो टू गेट द एक्चुअल काउंटिंग हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड लगाएंगे 2 फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई बाई 1/2 फैक्टोरियल। नाउ दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो जितने भी ग्रुप साइज सेम होंगे उतने फैक्टोरियल हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड लगा लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 24 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 3। तो हमारा एक्चुअल ग्रुप कितना बन रहा है, 3 ग्रुप बन रहा है।
पहला P1 P2 P3 P4, दूसरा P1 P3 P2 P4 एंड P2 P3 एंड P1 P4। सो हमारा जो एक्चुअल काउंटिंग है वो 3 ही बन रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ग्रुप में, वहाँ से आ रहे हैं 6 आ रहे हैं ऑप्शन। लेकिन सिंस वी हैव सीन कि हमारे पास जो हो रहे हैं आपस में ग्रुप क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, दैट वी नीड टू गेट एक्चुअल काउंटिंग बाय डिवाइडिंग 2 फैक्टोरियल। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 3। तो और समझते हैं इसको। तो अगर हमारे पास सेम थ्योरम जो हमने पढ़ा है अभी कि m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इस बार, m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो हों, m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन m और n की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैं m की जगह पे n पुट कर दूं तो हो जाएगा n प्लस n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n प्लस n। दैट मीन्स हमारे पास 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, एंड वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स सच दैट फर्स्ट टीम हैज n एलिमेंट्स एंड द सेकंड टीम हैज n एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, हमें 2n एलिमेंट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्ट में, पहले में n आया दूसरे में भी n आ जाए, तो उसका क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा टोटल काउंटिंग। इसके अंदर हमारे क्या हो रहे होंगे, आपस में 2 फैक्टोरियल से काउंटिंग इंक्रीज हो रही होगी। तो क्या करेंगे, 1/2 फैक्टोरियल कर लेंगे सो एज टू गेट द एक्चुअल काउंटिंग, बिकॉज वी हैव सीन कि जब भी हम प्लेयर को डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में, तो दो ग्रुप बन रही है, वो आपस में क्या हो रही है, सफल हो रही है। टू गेट द एक्चुअल काउंटिंग हमने क्या किया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया। सिमिलरली अगर लेट्स से हमारे पास अगर 6 प्लेयर हो, P1 P2 P3 P4 P5 P6, और हमें इनको डिवाइड करना हो 2 प्लेयर के ग्रुप में, दैट इज 6 प्लेयर हैं और यहाँ पे 2 प्लेयर और यहाँ पे भी 2 प्लेयर, तो टोटल 3 ग्रुप बनाने हैं इन सच वे कि हमारे पास 2 की 3 ग्रुप बनानी है। तो ग्रुप साइज इज सेम। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर हम इसको एक्चुअल काउंटिंग करेंगे तो हम कैसे देखेंगे इसको, P1 P2 P3 P4, यहाँ आएगा P5 P6। हमारे पास क्या हो रहा है, 2 का ग्रुप बन रहा है। अब यही सेम ग्रुप जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर लेट्स से इसको मैं x बोल दूं, इसको y और इसको z, तो 3 एलिमेंट को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो ये जो सेम लिखा हुआ है x टीम में क्या आ रहे हैं, P1 P2 प्लेयर आ रहे हैं, y टीम में P3 और P4 प्लेयर आ रहे हैं, और z टीम में कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं, P5 और P6। तो हमें इनको आपस में जब अरेंज करना पड़ रहा तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हम 6 तरीके से इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली क्या होगा, ये किस तरीके से होगा, तो P1 P2 यहाँ पे आ रहा है, किसी वाले केस में क्या होगा, P1 P2 यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली P5 P6 यहाँ आ जाएगा, और जो बचा हुआ है P3 P4 वो यहाँ आ जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो सेम ही है, तो सेम प्लेयर्स हैं, बस अलग अलग टीम में जा रहे हैं, दैट्स वाई हमें ग्रुप तो एक ही है बट अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो दैट्स वाई टू रिमूव दोज फॉल्स काउंटिंग वी नीड टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ग्रुप साइज होंगे, जितने भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, उतने ही फैक्टोरियल में डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल इस केस में क्या हो रहा है, ग्रुप साइज कितना है, 2 का, और ये 3 है टोटल, तो हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर इसका अगर हमें आंसर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिस विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया हमारा डिस्टिंक्ट के लिए। नाउ हमें क्या करना है, ग्रुप साइज सेम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड लगाएंगे, जितने ग्रुप साइज सेम है, दैट इज 3, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ सेम साइज, सो वी विल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी आवर एक्चुअल काउंटिंग फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स। सिमिलरली लेट्स से अगर हमारे पास 8 लोगों का 8 प्लेयर्स हो और हमें 4 ग्रुप बनाने हो 2 के, इस तरीके से अगर हमें 4 ग्रुप्स बनाने हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, लेट्स से ग्रुप नेम इज x y z और यहाँ पे लेट्स से a है, तो 4 ग्रुप बन रहे हैं हमारे पास। तो इनको आपस में अरेंज करने कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर इसमें P1 P2 है, इसमें P3 P4 है लाइकवाइज, तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में 4 फैक्टोरियल से सफल कर सकते हैं। नाउ वी नीड एक्चुअल अकाउंटिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 4, क्योंकि ये 4 बार लिखेंगे हम लोग। फिर ये तो हो गया हमारा डिस्टिंक्ट डिवीजन, मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम लोग, जितने भी ग्रुप साइज सेम है 4, तो 1/4 फैक्टोरियल।
तो हमने ये देख लिया कि हम फॉल्स काउंटिंग को कैसे रिमूव कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग द, जितने भी ग्रुप साइज होंगे इसके, सेम ग्रुप साइज जितने होंगे उतने फैक्टर्स हम लोग डिवाइड करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड अदर एग्जांपल्स एज वेल. सो लेट्स सी, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से दिया हो कि वी हैव 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और हमें इसको डिवाइड करना है इस तरीके से कि पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट आए, सेकेंड ग्रुप में लेट्स से इसमें भी 2 एलिमेंट आ जाएं, और थर्ड ग्रुप में कितने आ जाएं, 6 एलिमेंट आ जाएं. तो हमें 3 ग्रुप बनाने हैं. पहले ग्रुप में लेट्स से 10 प्लेयर्स हैं, फर्स्ट टीम में 2 प्लेयर हैं, सेकेंड टीम में 2 प्लेयर, थर्ड टीम में 6 प्लेयर हैं. टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन इक्वल्स टू डिवीजन बोल लें, या फिर और नंबर ऑफ ग्रुप्स. पीएनसी की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं एग्जाम क्वेश्चंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इसीलिए हमें हर तरीका पता होना चाहिए क्या मतलब है. तो डिवीजन पूछेगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द ग्रुप्स. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 ग्रुप बनेगा, ग्रुप नेम इज लेट्स से ए, बी और सी. 3 ग्रुप बन गए हमारे पास. कितने तरीके होंगे इसको अरेंज करने के, कितने तरीके होंगे इसको ग्रुप फॉर्म करने के? तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल. तो ये तो हो गए टोटल डिस्टिंक्ट वाले. अब हमें क्या करना है, फॉल्स काउंटिंग को रिमूव करना है. तो किससे डिवाइड लगाएंगे हम लोग, जितने भी ग्रुप साइज सेम होंगे उससे से डिवाइड लगाएंगे. इस केस में क्या हो रहा है, 2 ग्रुप साइज सेम है, मतलब 2 फैक्टर से डिवाइड लगा लेंगे. सिमिलरली लेट्स से अगर हमारे पास प्रॉब्लम हो 10 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 ऐसे कर लेते हैं, 2 2 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 4. तो हमारे पास दो प्लेयर 3 ग्रुप में आ रहे हैं, और एक टीम में 4 प्लेयर आ रहे हैं. टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल. तो हम क्या करेंगे, फॉल्स काउंटिंग को रिमूव करेंगे. तो कितने ग्रुप्स यहाँ पे सेम हो रहे हैं, टोटल 3 ग्रुप्स आर देयर विच आर सेम. अगर 3 ग्रुप सेम है इसका मतलब, तो हम वी विल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. दिस विल बी आवर एक्चुअल आंसर फॉर डिवीजन. तो सिमिलरली लेट्स से कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं. अगर हमारे पास लेट्स से 10 ही एलिमेंट्स हो, हमें डिवाइड करना हो 1 1 1 और 1, कितने हो गए, 4 हो गए. और लास्ट में यहाँ पे लेट्स से 2 आ गए, एक और टीम बनती है 2 की, तो 4 + 4 8, लेट्स से एक बार और 2 आ गया. तो हमने क्या किया, 6 ग्रुप बना लिया. आउट ऑफ 10 प्लेयर्स वी हैव मेड 6 टीम. लेट्स से इन टीम ए देयर आर 1 प्लेयर, टीम बी हैज 1 प्लेयर, टीम सी एंड टीम डी हैज 1 प्लेयर, एंड इन अदर 3 टीम्स, ओके वी हैव 7 टीम्स एक्चुअली. तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 7 ग्रुप बने हैं, जिसमें 4 ग्रुप जो है एक प्लेयर ले रहे हैं, बाकी जो 3 ग्रुप है उसमें 2 प्लेयर हैं. तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे इस केस में. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, इसका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, जितने टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसका उतने का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टीम ए में कितने जा रहे हैं 1, तो 1 फैक्टोरियल कितनी बार जा रहा है, ये टोटल 4 बार. तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल पावर 4, यहाँ पर जाएगा 2 फैक्टोरियल का पावर 3, क्योंकि हम इसे क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो गया हमारा डिस्टिंक्ट का. हम क्या करेंगे, फॉल्स काउंटिंग को रिमूव करेंगे. तो फॉल्स काउंटिंग कितना कैसे रिमूव करेंगे, तो ये जो हमारे टीम्स बन रही है इसमें कितने ग्रुप साइज है 1, और ये कितने बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है. तो जितनी बार हो रहा होगा सेम ग्रुप साइज, उतने फैक्टर से डिवाइड लगा लेंगे. यहाँ हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, एक और डिवाइड लगाएंगे क्योंकि 2 भी जो ग्रुप साइज 2 के हैं वो भी आपस में क्या हो रहा है, सेम हो रहे हैं. तो ये कितनी बार सेम हो रहा है, 2 बार, तो इसलिए 1/2 फैक्टोरियल और हो जाएगा. तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी 3 है यहाँ पे, 2 के 3 ग्रुप बन रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 3 ग्रुप बन रही है जो आपस में सेम है. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स कि जब भी अगर ग्रुप साइज सेम हो रहा होगा तो वी विल सी कि जितने भी ग्रुप साइज सेम हो रहे होंगे उतने फैक्टर्स हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड लगा लेंगे टू रिमूव द फॉल्स काउंटिंग. एंड वी हैव सीन थ्रू द एक्चुअल काउंटिंग फ्रॉम द एग्जांपल कि जब हम P1 P2 P3 P4 का प्लेयर बना रहे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 4 ग्रुप में, जब भी हम उनका ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सेम प्लेयर जो है आपस में सफल हो रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय n फैक्टोरियल, जो कि वेयर n इज द नंबर ऑफ टाइम्स द सेम ग्रुप हैज बीन टेकन. तो अगर हम एक बार समरी लिखे पूरा जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया.
तो लेट्स से अगर हम समरी बनाएं पूरे, अगर हमारे पास m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, इफ वी हैव m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, if we have m plus n distinct objects and we need to divide into two parts, that is m and n, where m is not equals to n, तो इसका ग्रुप डिवीजन कितना हो जाएगा इसका? तो डिवीजन इज इक्वल्स टू m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये हो गया हमारे पास थ्योरम 1। थ्योरम 2 क्या क्या मतलब है? वी हैव सीन कि हमें जब भी डिवाइड करना हो ग्रुप को तो हम क्या करेंगे, पहले ये क्लियर कर लेंगे कितने साइज का ग्रुप बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चेक करेंगे कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या हम कभी भी डिवाइड नहीं लगाएंगे n फैक्टोरियल से। अगर ग्रुप साइज सेम है तो वी विल सी कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके साइज सेम है, तो वी विल डिवाइड बाई दैट नंबर, उस नंबर का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। थ्योरम 2 में क्या होता है, अगर हमारे पास m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, अगेन आई एम सेइंग दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी नीड टू डिवाइड दिस ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स इन सच अ वे दैट ग्रुप A has m elements, group 2 has n elements and the group 3 has p elements. So total number of division possible is equals to, when I am saying total number of division, it means total number of ways of forming groups is equals to m plus n plus p factorial divided by m factorial into n factorial into p factorial. Similarly अगर हमारे पास ये हो गया थ्योरम 2, अगर हम बात करें थ्योरम 3 की, तो अगर लेट से हमारे पास m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो वेयर m इज इक्वल्स टू n हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। टू रिमूव द फॉल्स काउंटिंग वी विल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अगर यही चीज़ अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, m और n को यहाँ पे बराबर है, तो थ्योरम 4 लिखेंगे हम लोग, इफ m प्लस n प्लस p आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट है ये लोग, और यहाँ पे m इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू p, लेट से 15 है इसकी वैल्यू, m प्लस n प्लस p की वैल्यू 15 आ रही है और m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू p की वैल्यू 5 आ रही है। सो वी नीड टू डिवाइड 15 प्लेयर्स इनटू 3 ग्रुप्स इन सच अ वे दैट ईच ग्रुप हैज 5 प्लेयर्स। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी डिवीजन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन इक्वल्स टू m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। टू रिमूव द फॉल्स काउंटिंग वी विल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप बनेंगे आपस में जो कि सेम होगा ग्रुप साइज। फिर लास्ट में हम बात करें थ्योरम नंबर 5 की, तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से हमारे पास m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वेयर n इज इक्वल्स टू p नॉट इक्वल्स टू m, मतलब m इन दोनों के बराबर नहीं है। लेट्स से यहाँ पे अगर 16 प्लेयर्स हो और एक टीम में 5 प्लेयर हो, दूसरी टीम में भी 5 प्लेयर हो, बाकी थर्ड टीम में क्या हो 6 प्लेयर हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे, डिवीजन इक्वल्स टू, सॉरी डिवीजन की बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई p फैक्टोरियल। नाउ सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, n और p क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, मतलब 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साइज सेम है, तो वी विल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इन दिस केस। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर कि यहाँ पे तीनों ग्रुप आपस में सेम हो रहे हैं, इसलिए हम लोग 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है कि आपस में सिर्फ 2 ग्रुप सेम हो रहे हैं, so that's why we are dividing by 2 factorial. So this is a summary which we have discussed for the formation of group. So हमने क्या देखा, जब भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको जितने भी n ऑब्जेक्ट्स होंगे डिवाइड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप साइज, जितने अगर ग्रुप ए का जितना साइज होगा उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ग्रुप 2 का जितना साइज होगा उसका फैक्टोरियल। So likewise we have seen all the examples and we have seen the numericals also for this. So now let's move towards the next topic, that is distribution. So now moving towards the topic distribution. So अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा कि कितने तरीके से हम कोई भी ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं। तो जब हमारे पास लेट से कि हमारे पास टीम बन जाती है, ग्रुपिंग हो जाती है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, तो उसको समझते हैं बाय मीन्स ऑफ थ्योरम। सबसे पहले अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n डिफरेंट थिंग्स एमंग n पर्सन सच दैट ईच गेट 1। हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है और n डिफरेंट पर्सन है, हमें इन सबको एक एक एलिमेंट बांटने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास अगर 5 बुक्स हो एंड वी हैव 5 स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 अलग अलग किताब हैं एंड वी हैव 5 स्टूडेंट्स, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दोज 5 बुक्स इनटू 5 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल। तो ऐसे समझते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, लेट से हम एक टेबल पे 5 किताब को अरेंज कर देंगे, राइट।
नाउ वी हैव 5 स्टूडेंट्स दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस, दैट्स नीड टू टेक दिस बुक्स। सबको एक एक किताब मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पांचों बच्चों को ऐसे बुलाएंगे लाइन से, इस तरीके से एक वन पॉसिबल वे में अरेंज कर देंगे उसको। अब आप सोचो कि 5 किताब रखी हुई है टेबल पे, एंड हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड स्टूडेंट 5। तो एक तरीका तो ये हो गया। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज दिस स्टूडेंट्स सो एज टू गेट द टोटल अरेंजमेंट्स? द आंसर इज 5 फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे, हम पांचों किताब को एक टेबल पर रख दिए। वी हैव आस्क्ड द स्टूडेंट टू कम एंड सिंगल स्टूडेंट हैज बीन टेकन वन बुक साइमल्टेनियसली। सबको एक एक किताब मिल गई। अब हम इन पांचों बच्चों को आपस में 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। सो आंसर इज 5 फैक्टोरियल। सो लाइकवाइज अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों और अगर हमें उनको n% में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो टोटल पॉसिबल वेज इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे, 5 बच्चों को आपस में 5 बुक्स को हमने क्या किया, टेबल पर अरेंज कर दिया। फिर हमने 5 बच्चों को बुलाया, एक एक बच्चे को एक एक बुक के सामने खड़ा कर दिया। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस 5 स्टूडेंट्स इज 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब कि हम 5 फैक्टोरियल से इन बच्चों को किताबें बांट सकते हैं। दैट इज n फैक्टोरियल फॉर दिस केस। सो लेट्स सी सेकंड केस, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n डिफरेंट थिंग्स अमंग r पर्सन्स, ऑल पॉसिबल वेज। तो ऑल पॉसिबल वेज का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, किसी ऐसे लेट्स से इसी की बात करें एग्जांपल लेके। सो वी हैव 10 स्टूडेंट्स एंड वी हैव 3 बुक्स। नाउ हमें 10 किताब को 3 बच्चों में बांटना है। तो ऑल पॉसिबल वेज का ये मतलब हुआ कि हो सकता है किसी एक बच्चे को एक भी किताब ना मिले, या फिर हो सकता है किसी 2 बच्चे को एक भी किताब ना मिले, या फिर हो सकता है इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक बच्चे को सारी बुक्स मिल गई। सो ऑल पॉसिबल वेज में ये सारे केसेस कवर हो जाएंगे। तो इसको ऐसे समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास 10 किताब है एंड वी हैव 3 स्टूडेंट्स, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दोस 10 बुक्स इनटू 3 अमंग 3 स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 3 बच्चों को बैठा दिए ऐसे आपस में, लाइन्स बैठा दिए। नाउ वी हैव 10 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, पहले बुक किताब को उठाया। नाउ इस किताब को मुझे देने के अगर मुझे बांटना हो 3 बच्चों में, तो मेरे पास कितने ऑप्शन इस किताब पहली किताब के पास। सो वी हैव 3 ऑप्शन। हम क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, इस किताब पहली किताब को स्टूडेंट 1 को दे सकता हूँ, या फिर स्टूडेंट 2 को, या फिर स्टूडेंट 3 को। सो लेट मी राइट हियर। तो लेट्स से वी हैव 10 बुक्स एंड वी हैव 3 स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट 1 को यहाँ बिठाया, स्टूडेंट 2 को यहाँ पे, स्टूडेंट 3 को यहाँ पे बिठाया। मैंने पहली किताब उठाई, तो पहली किताब को बांटने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। तो फर्स्ट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बाय 3 वेज। फिर मैंने क्या किया, सेकंड बुक उठाया। अब सेकंड बुक को बांटने के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं, तीनों में से किसी को दे सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, वापस मेरे पास 3 ऑप्शन आए। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, 10वां किताब उठाऊंगा। ये कितनी बार हो गया, 10 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, पहली बुक उठाया, इनमें से किसी को भी दे दिया। सेकेंड बुक उठाया, लेट्स से मैं थोड़ा सा इसका कम करता हूँ काउंट। सो मैं क्या करता हूँ, 5 बुक्स रखता हूँ, 5 किताब रखता हूँ यहाँ पे। इसको 5 बार लिखते हैं। मैं पहली बुक उठाई B1 लेट्स से मैंने इसको दे दिया एज स्टूडेंट 1 को। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास 3 ऑप्शन थे पहले किताब को बांटने के लिए। मैंने किताब दूसरी उठाई, मेरे पास अभी भी 3 ऑप्शन है। मैंने लेट्स से B2 बुक जो है S2 को दे दिया। फिर मैंने क्या किया, B3 उठाया, थर्ड किताब, अभी भी मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मैं लेट्स से इसको दे दिया वापस से S1 को, B3। सिमिलरली मैं 4th किताब उठाऊंगा, उसके लिए भी मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे। 5th बुक के लिए भी मेरे पास टोटल 3 ऑप्शन होंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5। तो अगर हम इसको जनरलाइज करना तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास 10 डिफरेंट बुक्स हैं और 8 डिफरेंट स्टूडेंट हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली बुक के लिए कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास, पहली किताब के लिए 8 ऑप्शन होंगे, मतलब 8 बच्चे बैठे होंगे। मैं 8 स्टूडेंट में से किसी को भी दे सकता हूँ। मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, 8। लाइकवाइज सेकंड बुक के लिए क्या होगा, मेरे पास अभी भी 8 ऑप्शन होंगे क्योंकि 8 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। लाइकवाइज जो लास्ट वाला किताब होगा उसके लिए भी मेरे पास 8 ऑप्शन होंगे। तो कितनी बार हो जाएगा टोटल मल्टीप्लिकेशन, n टाइम्स। तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, r का पावर n। दिस इज आवर आंसर। इसको कंफ्यूज मत करना n की पावर r से, इट इज नॉट इक्वल टू n का पावर r, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होते हैं और ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं बैठा हुआ। तो हम समझने के लिए क्या करेंगे, जितने लोगों में बांटना है हम उतने लोगों को बिठा दिए। फिर पहला किताब उठाएंगे हम लोग, फर्स्ट बुक, हमारे पास 8 ऑप्शन हैं। सेकेंड बुक के लिए भी 8 ऑप्शन हैं। लाइकवाइज लास्ट बुक के लिए भी 8 ऑप्शन हैं। तो इन टोटल दिस विल बी multiplied n times, so final answer will be r raised to the power n. So third case is number of ways of distributing n different things among r persons such that each get at least 1. तो अभी क्या था यहाँ पे ऑल पॉसिबल के वेज में कि किसी को हो सकता है किसी बच्चे को एक भी किताब ना मिले,
बट यहाँ पे ये बोला कि एटलीस्ट एक किताब सबको मिलनी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो फाइनल आंसर आता है रिजल्ट बाय द मीन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका रिजल्ट आता है r का पावर n माइनस r में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाई r माइनस 1 का पावर n, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे आएगा प्लस, r में से किसी 2 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएगा r माइनस 2 का पावर n प्लस माइनस, इस तरीके से ये चलेगा सीक्वेंस। यहाँ आएगा rc3, फिर यहाँ आएगा r माइनस 3 का पावर n, लाइक वाइज ये चलता रहेगा इस तरीके से जब तक कि वैल्यू खत्म ना हो जाए पूरी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, बट वी विल सी द एग्जांपल आल्सो फॉर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम देखेंगे कि बिना फॉर्मूला सॉल्व यूज किए भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप्स में बाय यूज ऑफ केस बनाएंगे, अलग अलग केसेस, उसका हम ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। सो नाउ so as of now we have seen division and distribution theoretically, and we have seen formation of number of groups by means of taking some of the examples. So now let's move towards the questions part. So जहाँ पे हम देखेंगे हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हो रहे होंगे अभी तक वो सारे क्लियर हो जाएंगे अभी by solving problems. So let's move towards the questions. So we can move towards our first question based on division and distribution topic which we have studied till now. So our first question is number of ways in which 52 playing cards equally divided into 4 heaps या फिर groups and 4 persons. तो हमें दोनों के इसके लिए आंसर कैलकुलेट करने हैं। तो पहला बोल रहा है कि 4 हिप्स का मतलब होता है गड्डी। हमें 52 प्लेइंग कार्ड्स के अलग अलग 4 गड्डी बनाने और उससे कितने ग्रुपिंग हम कर सकते हैं उसका वैल्यू बताना है हमें। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स, दैट इज 13 का हमारे पास 4 गड्डी बन जाएगा। तो हमने क्या देखा था ग्रुपिंग वाले कॉन्सेप्ट में, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ डिवीजन विल बी इक्वल्स टू, सिंस ऑल द ग्रुप साइज आर सेम सो इट मीन्स इट इज ऑफ द टाइप वेयर ग्रुप साइज इज सेम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ईच, जितने भी पहले टीम में कितने फैक्टोरियल है, सॉरी कितने एलिमेंट्स है 13, तो 13 फैक्टोरियल, फिर दूसरे वाले में भी 13 फैक्टोरियल, अगेन 13 फैक्टोरियल, अगेन 13 फैक्टोरियल, यह हुआ हमारा टोटल डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बट सिंस वी हैव सेम ग्रुप साइज, हम क्या करेंगे जितने भी ग्रुप साइज होंगे सेम, 4 ग्रुप बन रहे हैं सेम साइज के, हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे 4 फैक्टोरियल से टू गेट द एक्चुअल काउंटिंग। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल डिवीजन। इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स अगर इसकी आंसर लेट्स अगर x आ रहा हो, इसका मतलब कि x तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 4 ग्रुप बनाना हो लेट्स से A B C D, तो हमारे पास टोटल x नंबर ऑफ वेज होंगे ग्रुप बनाने के। ये हो गया हमारे पास पहला आंसर कि हम इतने तरीके से इतना ग्रुप्स बना सकते हैं। इन सेकेंड क्वेश्चन हम ये बोल रहे हैं कि 4 अलग अलग पर्सन में बांटना है। जो हमने 13 की जो 4 गड्डी बनाई है, नाउ वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू 4 पर्सन्स। सो वी हैव सीन देयर कि लेट्स से अभी हमने जो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर एन डिफरेंट थिंग्स में बांटना हो, अगर हमें एन डिफरेंट लोगों में बांटना हो, it will be n factorial. So let's say we have A, B, C, D 4 distinct objects and we need to distribute these 4 objects into 4 different persons. So the answer will be 4 factorial. Similarly हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे 4 अलग इतने ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे पास, इतने सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, मतलब लेट्स से ये n आ रहा है इसका अगर आंसर, तो n ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे पास, हमें 4 लोगों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेट्स से जो हमारे पास चारों ग्रुप बने हैं कुछ इस तरीके से बन रहा हो। तो लेट्स से कार्ड की नंबरिंग हो 1 से लेके 52 फॉर एग्जांपल, तो लेट्स से यहाँ पे आ रहा है 1 2 से लेके 13 तक, यहाँ पे आ रहा होगा 14 से लेके 26 तक, यहाँ पे आ रहा होगा 27 से 39 तक, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा होगा 40 से लेकर के 52 तक। अब ये सारे 4 अलग अलग हिप्स बन गए, 4 अलग अलग गड्डी बन गए। अब हमने क्या किया, इन 4 गड्डी को रख दिया ऐसे टेबल पे, है ना। अब हमारे पास 4 अलग अलग लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बांटा था अभी 5 चॉकलेट को 5 बच्चों को, सॉरी 5 किताब हमने रखा था टेबल पे, फिर हमने 5 बच्चों को बुलाया, खड़ा कर दिया एक एक किताब के सामने, एंड वी हैव सीन कि हम 5 फैक्टोरियल बच्चों को अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पर 4 अलग अलग गड्डी बना दी, हमने नंबर दे दिया कार्ड का 1 से लेकर 13 तक, पहले गड्डी में आएगा, दूसरे गड्डी में आएगा 14 से 26, लाइक वाइज इन दिस वे। अब हम क्या करेंगे, इन चारों पर्सन को बुलाएंगे और इनके सामने खड़ा कर देंगे एक, ये हो गया हमारा पास एक अरेंजमेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, इन चारों पर्सन को वी कैन अरेंज दिस 4 पर्सन बाई मीन्स ऑफ 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब कि कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो ग्रुप कितने बन सकते हैं इस तरीके ऐसे ग्रुप्स, वो हो गए ये वाला आंसर। तो हमारे पास क्या किया हमने, पहले डिवीजन
फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 विल बी वी विल सिग्निफाई द ग्रुप साइज, सिग्निफाई ग्रुप साइज। In this case, it was 13, 13, 13, 13. We have distributed into 4 equal groups. तो हमारे पास स्टेप 2 क्या होगा, हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे टू फॉर्म द नंबर ऑफ ग्रुप्स। और फिर स्टेप 3 दैट इज फाइनल स्टेप, हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास ये 3 स्टेप होगा। हम सबसे पहले ग्रुप साइज पता करेंगे कितने ग्रुप में हमें डिवाइड करना है, या तो हमें कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, या फिर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग अपना ग्रुप साइज डिवाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे। फिर हमारे पास डिवीजन आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने यहाँ पे डिवीजन देख लिया, इतना आ रहा है आंसर। तो जो ये आंसर आ रहा है तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड क्वेश्चन का, इट विल बी 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल का पावर, इसका पावर हो जाएगा 13 फैक्टोरियल का पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या देखा कि हम इतने तरीके से अपना नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकते हैं, फिर इतने तरीके से हम नंबर ऑफ हिप्स बना सकते हैं, मतलब 13 के इतने तरीके से हम ग्रुप्स बना सकते हैं। अब हम क्या किए, लेट से हमने एक सैंपल पे इन चारों कार्ड को इस तरीके से रख दिया, चारों बंडल को इस तरीके से रख दिया, हमने ए बी सी चारों पर्सन को से अरेंज किया। नाउ वी नो कि हम इन चारों पर्सन को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं आपस में, दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल टू गेट द फाइनल आंसर। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, in how many ways 50 volunteers can be sent for election campaigning to 3 districts having a requirement of 20, 10, 20 volunteers respectively? तो हमारे पास 50 volunteers हैं टोटल, एंड हमें क्या करना है, 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजने हैं, 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजने हैं 50 volunteers को इन सच ए वे दैट कि पहले डिस्ट्रिक्ट में 20 volunteers जाएं, सेकंड में 30 और फर्स्ट में 20, सेकंड में 10 और थर्ड में 20 volunteers हमें भेजने हैं। तो इसके कितने टोटल पॉसिबल वेज हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इन टोटल 50 वॉलंटियर्स हैं। तो सवाल क्या हुआ, पहले इसको ग्रुपिंग में डिवाइड करेंगे। तो 50 वॉलंटियर्स में डिवाइड करना है 20, 10 और 20 में। तो हमें 3 ग्रुप बनानी है, पहले ग्रुप में 20 लोग आएंगे, सेकेंड ग्रुप में 10 लोग और थर्ड ग्रुप में 20 लोग। तो टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल है इसके ग्रुप फॉर्मेशन। तो डिवीजन इक्वल्स टू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने भी पहले ग्रुप में जितने भी लोग हैं उतने से फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, फिर 10 फैक्टोरियल, उसके बाद फिर 20 फैक्टोरियल। नाउ सिंस वी हैव सीन ग्रुप ए एंड ग्रुप सी हैव सेम नंबर ऑफ पीपल, सो वी विल बी डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि जितने ग्रुप साइज सेम होंगे उतने से हम क्या करेंगे, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे इसको, बेसिकली डिवाइड बाई 1/2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा टोटल डिवीजन हो गया। टोटल इतने ग्रुप्स पॉसिबल हैं फॉर दिस गिवन कंडीशन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें 3 डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, मतलब 3 ग्रुप बनाने हैं बेसिकली। और हमें क्या करना है, लेट से डिस्ट्रिक्ट 1 है और ये डिस्ट्रिक्ट 2 है और ये डिस्ट्रिक्ट 3 है। तो हमें इस तरीके से भेजना है कि यहाँ पे 20 लोग आए, यहाँ पे 10 लोग और यहाँ पे 20 लोग। सो वी हैव दिस अरेंजमेंट इज फिक्स्ड, वी कांट से कि यहाँ पे 10 आ जाए और यहाँ पे 20 आ जाए और यहाँ पे भी 20 आ जाए। दिस इज रॉन्ग बिकॉज द ऑर्डरिंग हैज बीन फिक्स्ड बाय द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अरेंज करना हो, जैसे हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करना हो हमें, तो क्या करते थे हम लोग, हमने क्या किया, ए और बी और सी को, लेट से यहाँ पे D1, D2, D3 है, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, इनको हमने बिठा दिया, फिर आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि सिर्फ हम इसको और इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं इसको, क्योंकि दिस वन हैज बीन फिक्स्ड। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका, टोटल आंसर विल बी इक्वल्स टू डिवीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास जितना आंसर आया ये डिवीजन का 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल का पावर 2, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। अब हम इतने हमारे पास टोटल ग्रुप्स बन गए। इन ग्रुप्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आपस में, सिर्फ D1 और D3 को आपस में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टोरियल आएगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन और दिस इज डिवीजन। तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन और ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमें ये ध्यान में देना है कि यहाँ पे अरेंजमेंट जो है ये 20, 10, 20 का फिक्स है। सो वी कांट मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल हियर, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज वी कैन ओनली
shuffle the number of people in district 1 and number of people in district 3. That's it. So that's why we are multiplying by 2 factorial. So now moving towards next question. So proceeding towards next question. So our question is, in how many ways can 6 distinct toys be distributed to 4 children such that each child gets at least 1 toy? तो हमने देखा था अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में थ्योरी पार्ट में थर्ड पॉइंट जो था कि वहाँ पे हमने देखा था एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर पर्सन्स सच दैट एवरी पर्सन गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट. सो उसी पे ये क्वेश्चन है. तो हम चाहे तो जो फॉर्मूला हमने वहाँ पे लिखा था वो यूज़ कर सकते हैं, बट हियर वी विल सॉल्व बाय मेकिंग द केसेस. जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो हम उसको वो हम देखेंगे, उस पर हम डिवीजन बनाएंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसको. सो लेट्स से वी हैव 6 डिस्टिंक्ट टॉयज. हमारे पास 6 खिलौने हैं, 4 बच्चों में बांटने हैं, करेक्ट. तो हम कितने कितने बच्चों में बांट सकते हैं आपस में सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1, किसी को भी 0 नहीं मिलना चाहिए. तो लेट्स से चाइल्ड 1 को 1 मिलता है, चाइल्ड 2 को भी 1 मिलता है और चाइल्ड 3 को भी 1 मिलता है. हमें 4 लोगों में बांटना है तो 4th वन को कितना मिलना चाहिए? 3, दैट इज 3. तो एक केस तो ये हो सकता है कि हम इतने किसी बच्चे को 1 दे दें, बाकी किसी 3 बच्चे को 1-1 दे दें टॉय, बाकी 4th बच्चे को 3 टॉय दे दें. और क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हमारे केसेस में? हम किसी को क्या कर सकते हैं, 2 दे सकते हैं, इसको भी 2 दे देते हैं और फिर बच्चा जो 2 खिलौने उसको हम 1-1 बांट सकते हैं. तो 2-2 1-1 मतलब 6 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे. तो 2 केस हमारे पास, केस 1, केस 2 कि हम किसी बच्चे को 2 दे दें, किसी और बच्चे को 2, बाकी 3rd को 1, 4th को भी 1. तो और कोई पॉसिबिलिटीज़ है क्या? अगर हम 3 दे दें किसी एक को तो ऑलरेडी हमने कर चुका है. 4 दे नहीं पाएंगे क्योंकि 4 देंगे तो एटलीस्ट 1 देना है, तो 7 होना चाहिए, हमारे पास 6 ही हैं. तो यही 2 केसेस पॉसिबल है हमारे पास. तो इस केस में अगर हम बात करें पहले केस की, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन सकते हैं इसमें? तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने के लिए क्या करेंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का पावर 3. ये तो क्या हमारे पास डिस्टिंक्ट है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स आ रहे हैं जिनके साइज सेम है. जितने इक्वल ग्रुप्स उतने फैक्टोरियल से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. तो कितने ग्रुप सेम है? 3. तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1/3 फैक्टोरियल. तो ये तो क्या हमारे पास डी की वैल्यू आ गई. इस केस में कितना आएगा डी की वैल्यू? हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का पावर 2, 1 फैक्टोरियल का पावर 2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 ग्रुप्स जो हैं सेम साइज के हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. अगेन ये वाले जो 2 ग्रुप्स हैं ये भी आपस में क्या है? सेम है साइजिंग का. तो अगेन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1/2 फैक्टोरियल. तो इस केस में डी की वैल्यू ये आ गई और इस केस में डी की वैल्यू ये आ गई. और हमें क्या करना है? इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है आपस में चारों बच्चों में. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल. हमारे पास 4 बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे? किसी भी इन ऑर्डर में खिलौने रख देंगे, 4 खिलौने रख देंगे. लेट से एक केस बनाते हैं कि हमने क्या किया, चारों खिलौनों को रख दिया इस तरीके से. हम क्या किए? 4 बच्चों को बुलाते हैं. सॉरी, वी हैव 6 डिस्टिंक्ट टॉयज. हमारे पास 6 खिलौने हैं. तो हमने क्या किया? एक अरेंजमेंट कर दिया कि पहले लेट से इस तरीके से डेस्क पे क्या किया हमने, पहले ये वाले केस बात करते हैं. तो पहले डेस्क पे एक खिलौना है T1, दूसरे पे भी T2, तीसरे पे T3, चौथे पे क्या है? T4, T5, T6. तो हमने क्या किया? बेसिकली इस तरीके से 4 ग्रुप बना लिए. हमारे पास कितने बच्चे हैं टोटल? 4. मतलब लेट से A B C और D 4 बच्चे हैं. तो हमने क्या किया? इस तरीके से खिलौने अरेंज कर लिए पहला ग्रुप बना के. 4 बच्चों को अब आपस में क्या कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से हम लोग क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं. तो हमारे पास कितना जाएगा? 4 फैक्टोरियल तरीका है एक केस के लिए. तो लाइक वाइज अगर हमारे पास कितने ग्रुप पॉसिबल है टोटल, इतने ग्रुप पॉसिबल है, तो इस जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल है मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल. ठीक है. तो फाइनल आंसर हो जाएगा डिवीजन मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो ये हमें समझ में आ गया क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल से. एक बार और समझाता हूँ. तो लेट से हमारे पास इस केस में देखते हैं वापस से. तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास आंसर? समझते हैं इसको. तो हमारे पास कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ कितने ग्रुप्स पॉसिबल है, इतने तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं. अब लेट से हमारे पास इतने ग्रुप पॉसिबल है, तो पहला कोई भी एक सैंपल लेते हैं कि लेट से 6 खिलौने हमारे पास. तो T1 T2 ये वाले ग्रुप पे आ गया, T3 T4 सेकेंड ग्रुप को मिल गया. ठीक है. बाकी 2 को एक मिल रहा है, दैट इज T5 एक अलग है, T6 एक अलग है. तो हमने क्या किया? एक सैंपल उठाया, एक
तरीके से हमने क्या किया, खिलौनों को इस तरीके से अरेंज कर दिया। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वेज। हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल वेज हैं? टोटल इतने पॉसिबल वेज, इतने तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन खिलौनों को 4 बच्चों में बांटना है। तो हमने क्या किया, बच्चों को बुलाया और ऐसे खड़ा कर दिया ABCD। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज दिस 4 स्टूडेंट्स टू गेट दिस नंबर ऑफ टॉयज? तो द आंसर इज 4 फैक्टोरियल। तो जितने नंबर ऑफ डिवीजन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। तो इस केस पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का पावर 3, यहाँ पे भी है तो बेसिकली 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया तो टोटल डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये डिवीजन हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आवर स्टेप 1 इज कि हम डिसाइड करेंगे कौन कितने साइज का ग्रुप बनेगा हमारा। तो हमने क्या किया, 2 केस बना लिया। केस 1 में ग्रुप साइज विल बी 1 फॉर 3 केसेस एंड ग्रुप साइज विल बी 3 फॉर द 4th ग्रुप। तो हमने क्या किया, इसका नंबर ऑफ ग्रुप्स निकाल लिए, इतने तरीके से ग्रुप बन जाएगा। फिर हमने क्या किया कि हमें पता है कि अगर हम एक सैंपल को अरेंज करें कि जिसमें फर्स्ट बच्चे को 1 खिलौना मिले, सेकंड को 1 और थर्ड को भी 1, और जो 4th बच्चा है उसको 3 खिलौने मिल जाए, तो इट इज़ वन ऑफ द पॉसिबल केस। एक केस है ये। तो हम क्या करेंगे, 4 बच्चों को बुला के इसे अरेंज कर सकते हैं। नाउ वी कैन अरेंज दिस 4 स्टूडेंट्स बाय 4 फैक्टोरियल वेज। तो इसी तरीके से हमारे पास जब ये एक केस होगा तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल आंसर आ रहा है। जब हमारे पास इतने वेज होंगे ग्रुप अरेंज करने के, टोटल आंसर विल बी टोटल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। लाइकवाइज सेकेंड केस में हमने क्या किया कि हमारे पास 2, 2, 1, 1 का ग्रुप बन रहा है। तो हमने क्या किया, पहले बॉक्स में 2 खिलौने रख दिए, सेकेंड बॉक्स में भी 2 खिलौने रख दिए, थर्ड बॉक्स में 1 खिलौना रखा, 4th बॉक्स में भी 1 खिलौना रख दिया। नाउ वी हैव 4 स्टूडेंट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस ऑल 6 डिस्टिंक्ट टॉयज। तो हमने क्या किया, चारों बॉक्स के सामने 4 बच्चों को खड़ा कर दिया। नाउ अगर ये एक पॉसिबल केस है इन खिलौनों को अरेंज करने का, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। लाइकवाइज अगर हमारे पास अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन का ये तरीका है, तो अगर हमारे पास टोटल ये इतने ग्रुप्स बन रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द केसेस, मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। टोटल केस मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल विल बी कंप्लीट आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, हम क्या करेंगे, तो जितने भी ये वाला आंसर आया प्लस दिस वन आंसर। सो मूविंग टुवर्ड्स 4th क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज in how many ways 8 people can be seated in 3 different taxis, each having 3 duly numbered seats, such that arrangement inside the taxi is immaterial and internal arrangement also matters। तो हमारे पास ड्यूली नंबर्ड क्या मतलब होता है, जब हम ट्रेन या फिर बस में जाते हैं तो हमारे पास ट्रेन के अंदर भी बहुत सारे सीट्स होते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं, सीट का नंबर, है ना। तो लाइकवाइज बस में भी क्या होता है, नंबर लिखे, सॉरी यहाँ पे टैक्सी दिया हुआ है। तो लेट्स से अगर ये टैक्सी है तो इसमें अगर 3 सीट्स हैं, अगर इस टैक्सी के अंदर लेट्स से अगर 3 सीट्स हैं, तो इसमें क्या नंबर लिखा हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूली नंबर। यहाँ पे लेट्स से 1, 2, 3 लिखा हुआ है टैक्सी 1 के अंदर। तो यही कहना चाह रहा है कि हमारे पास टोटल 8 लोगों को बिठाना है 3 डिफरेंट टैक्सी में, इस टैक्सी हैविंग 3 सीट्स, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन फर्स्ट केस अरेंजमेंट इनसाइड द टैक्सी इज इमटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टैक्सी के अंदर जो बिठाएंगे लोगों को, दैट इज इमटेरियल, मतलब दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी केस 1, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं हमारे पास, टोटल 8 लोग हैं। वी नीड टू अरेंज दिस पीपल इन सच ए वे दैट कि हमारे पास 3 टैक्सी, तो हमें 3 ग्रुप बनाना है बेसिकली, और इस तरीके से बनाना है कि सच दैट अरेंजमेंट इनसाइड द टैक्सी इज इमटेरियल, ठीक है। तो हमारे पास 3 ग्रुप बनाना है, तो किस तरीके से बना सकते हैं, पहले ग्रुप में 2 लोग आ जाएं पहले टैक्सी में, थर्ड में, सेकेंड और थर्ड में 3 लोग आ जाएं। दिस इज द ओनली केस पॉसिबल फॉर दिस केस। तो अगर इसमें हम डिवीजन की बात करें तो टोटल कितने डिवीजन पॉसिबल हैं, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज दिस 2 साइज ऑफ द ग्रुप आर सेम, दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इतने टोटल नंबर ऑफ ग्रुपिंग पॉसिबल हैं। तो ये तो है हमारे पास टोटल ग्रुप्स जो हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। नाउ अरेंजमेंट इनसाइड द टैक्सी इज इमटेरियल। तो लेट्स से हमारे पास 3 टैक्सी है, इस तरीके से टैक्सी 1, टैक्सी 2 और टैक्सी 3। तो ये हो गया टैक्सी 1, ये हो गया टैक्सी 2 और ये हो गया टैक्सी 3। इसके अंदर भी 3 सीट हैं, मतलब इसके अंदर भी 3 सीट और इसके अंदर भी 3 सीट। तो हमने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे तीनों ऑक्यूपाइड है और यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्यूपाइड है, ये वाला और ये वाला सीट वैकेंट है। तो टोटल कितने पॉसिबल हो गए यहाँ पे 3, या फिर ऐसे कर लो यहाँ पे ये वाला वैकेंट है, बाकी इन तीनों में सब ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे हो गया 2, बेसिकली हो गया 2, 3 और 3।
3 और 3। तो कितने तरीके से हमने यहाँ पे अरेंज किया, 2, 3 और 3 तरीके से। टैक्सी 1 में 2 लोग बैठ गए, टैक्सी 2 में 3 लोग, टैक्सी 3 में 3 लोग बैठ गए, ठीक है। नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस नंबर ऑफ पीपल्स एमंग दिस टैक्सीज बाय 3 फैक्टोरियल। हम क्या कर सकते हैं, इन जो अरेंजमेंट है 2, 3, 3 का, इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ 3 फैक्टोरियल की। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, इस तरीके से हम 6 वेज बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हमारा होगा डिवीजन। तो अगर हम फर्स्ट केस की आंसर की बात करें, अगर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने लोग हैं, 3 टैक्सी टोटल, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास केस 1 का आंसर। हमने क्या किया, पहले 2 और 3 का ग्रुप बना लिया 8 लोगों में। इस तरीके से हम 8 लोगों को बिठा सकते हैं इन 3 टैक्सीज। एक टैक्सी में 2 लोग, एक टैक्सी में 3 लोग, एक टैक्सी में 3 लोग। तो टोटल ग्रुप कितने बन जाएंगे हमारे पास, दिस मच ऑफ ग्रुप्स इज पॉसिबल। नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस पर्सन्स अमंग द टैक्सीज बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास जब इंटरनल अरेंजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ केस 2, जब इंटरनल अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि टैक्सी 1 में अगर लेट से 3 सीट है, टैक्सी 2 में भी 3 सीट है और टैक्सी 3 में भी अगर 3 सीट है, तो लेट से इसका तीनों को पाइड, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, तो 1 सीट खाली है यहाँ पे। तो हम इनको आपस में भी कैसे अरेंज कर सकते हैं, लेट से यहाँ पे पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3 है, तो इसको आपस में हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। लाइक वाइज यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 सीट ऑक्युपाइड है आउट ऑफ 3 सीट्स, तो कितना टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 3 में से कोई भी 2 सीट्स सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट अगर हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये क्या था, नंबर ऑफ वेज विदाउट अरेंजमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला आंसर लिख लेंगे, नंबर ऑफ वेज विथ अरेंजमेंट विथ इंटरनल अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा डिवीजन और ये हो गया हमारा डिवीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा टोटल डिवीजन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरनल अरेंजमेंट तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर सेकेंड केस। तो एक बार वापस समझते हैं, अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल 8 लोगों को बिठाना था 3 टैक्सी के अंदर, जिसमें 3 सीट्स अवेलेबल है इन ईच टैक्सीज। तो हमने ग्रुप बना लिया 2 और 3 का। तो इसके टोटल नंबर ऑफ कितने ग्रुप्स पॉसिबल हैं, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। क्योंकि 2 ग्रुप साइज सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगा लेंगे टू अपने द एक्चुअल ग्रुप फॉर्मेशन। टोटल डिवीजन इतने हो जाएंगे, मतलब इतने ग्रुपिंग्स पॉसिबल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपस में 3 फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स से टैक्सी 1 में टैक्सी 1, टैक्सी 2 और टैक्सी 3 जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे, इनको आपस में क्या कर सकते हैं, हम 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टैक्सीज। तो ये हो गया हमारे पास कि बिना इंटरनल अरेंजमेंट के ये आंसर हो गया। नाउ ये आंसर तो ये पूरा टर्म तो होगा ही, प्लस वी विल मल्टीप्लाई विथ दिस इंटरनल अरेंजमेंट। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं तो यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल से ये लोग अरेंज हो सकते हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं आउट ऑफ 3 सीट्स, तो 3 सीट मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अगर हम चाहें तो सेकंड केस को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर हमें सेकंड केस को सॉल्व करना हो तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, टोटल 9 सीट्स हैं, 3 टैक्सी हैं अलॉन्ग विथ 3 सीट्स इन ईच टैक्सी, सो देयर आर टोटल 9 सीट्स। तो हमारे पास टोटल 9 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 आउट ऑफ 9 सीट्स वी हैव 8 पर्सन दैट नीड टू बी सीटेड ओवर दिस सीट्स। हो जाएगा हमारे पास 9 में से किसी भी 8 पर्सन को चूज करना है। इनको आपस में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, बाई 8 फैक्टोरियल। सो बेसिकली दिस विल बी 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल। सो वी कैन क्रॉस चेक द आंसर फॉर दिस वन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या होगा, 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा, ये दोनों टर्म उड़ जाएंगे, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 बार यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये पूरा टर्म, इससे और इससे कट जाएगा,
फिर हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3c2 दैट इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल जो है इससे कट जाएगा, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो फाइनल क्या आ रहा है हमारे पास, 3c2 की वैल्यू हो जाएगी 3c2 हो जाएगी 3। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल की जो स्क्वायर है ये वाला टर्म यहाँ एक बच रहा है 3 फैक्टोरियल, पीछे एक 2 फैक्टोरियल और बच रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। बेसिकली आ रहा है 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 9 फैक्टोरियल। सो वी कैन सी बोथ आंसर आर सेम। इससे क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल 9 सीट्स हैं और 8 लोगों को बिठाने हैं हमें 9 सीट्स पे, और हम उनको 9C8 से सिलेक्ट कर सकते हैं बाई, एंड वी कैन अरेंज देम बाई 8 फैक्टोरियल। सो दिस वाज गुड क्वेश्चन, यू कैन resolve it by your own to get the better understanding. So let's see JEE advanced questions which has been asked in 2020. The question says, in a hotel 4 rooms are available, 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contains at least 1 person and at most 2 persons. So this line is important, at least 1 person and at most 2 persons. Then the number of all possible ways in which this can be done is. तो हमारे पास दिया हुआ है कि 4 रूम है, टोटल 6 लोगों को एकोमोडेट करना है उन 4 रूम्स में। तो लेट्स से वी हैव 4 रूम्स, R1, R2, रूम 1, रूम 2, रूम 3 एंड रूम 4। वी नीड टू एकोमोडेट इन दिस 4 रूम्स टोटल 6 पर्सनस। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं पहले कि अगर हमारे पास टोटल 6 लोग हैं तो हम कितने तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं 4 के रूम में, कितने कितने लोगों को। लेट्स से अगर हम, कंडीशन है कि हमारे पास इस तरीके से ग्रुप बनाना है कि एटलीस्ट 1 पर्सन तो होना चाहिए एक रूम में, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हो सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें कि 3 लोग रह ले एक रूम में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर हम चाहें कि एक रूम पूरा खाली हो जाए देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, लेट से एक रूम में एक आदमी को भेजते हैं, एक पर्सन को, बाकी में अगर लेट से 1 और 2, मैक्सिमम 2 अलाउड है तो हमने 2 और 2 कर दिया, 4 प्लस 1 और 1, मतलब टोटल 6 हो गए। कोई और केसेस पॉसिबल है क्या, अगर हम यहाँ पे लेट से अगर 3 करते हैं तो 3 अलाउड नहीं है, यहाँ पे 0 भी अलाउड नहीं है, तो मतलब टोटल एक ही केस बन रहा है हमारे पास इस गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिवीजन निकालेंगे, कितने टोटल ग्रुप्स पॉसिबल हैं ऐसे कि हम इन पर्टिकुलर केसेस में लोगों को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग रूम में। तो डिवीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन। सिंस वी नो कि इसमें क्या हो रहा है कि 2 ऐसे ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं जिसमें सेम साइज के हैं, यहाँ पे भी 2 ग्रुप हैं जो सेम साइज के हैं। तो हम क्या करेंगे, टू डिलीट फॉल्स काउंटिंग, हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, अगेन डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से टू गेट द एक्चुअल काउंटिंग। तो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल। तो लेट से अगर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा केस है जिसमें रूम 1 में एक बंदा आ रहा है, लेट से पर्सन 1, रूम 2 में पर्सन 2 आ रहा है, रूम 3 में 2 लोग आ रहे हैं, that is person 3 and person 4. In room 4 also 2 persons are to be accommodated. So let's say those persons are P5 and P6. तो अगर एक केस ये पॉसिबल है कि एक रूम में पहला बंदा आ जाए, सेकेंड रूम में पर्सन 2 आ जाए, थर्ड रूम में पर्सन 3 4 आ जाए, चौथे रूम में पर्सन 5 और पर्सन 6 आ जाए। तो अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है तो टोटल कितने तरीके से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में, टोटल अरेंजमेंट इज 4 फैक्टोरियल। तो इनको हम आपस में अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से, करेक्ट। इफ दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस, तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुपिंग्स पॉसिबल हैं, दिस मच ग्रुपिंग इज पॉसिबल। सो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल्स टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम इनको आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगी 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ गया 6, तो 4 1 जा 4, 4 30 टाइम्स हो जाएगा 120। सॉल्व कर लेंगे तो 36 इंटू 3 0 दैट इज 1080 इज द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इक्वल टू 1080 दैट इज 1080 वेज है। तो हमने क्या किया, वापस से देखते हैं, जो एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो टोटल 6 लोगों को हमें 4 रूम्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला केस स्टेप क्या होता है हमारा, हम ग्रुप बनाएंगे, कितनी पॉसिबल ग्रुपिंग पॉसिबल है।
तो हमने क्या किया, केस 1 में देखा कि 1-1, 2-2 का ग्रुप बना दिया 4 रूम में एलोकेट करने के लिए. वी कैन सी none other than this any possible cases are there. तो हम इनका डिवीजन करेंगे. तो कितने ग्रुपिंग्स पॉसिबल है इनमें, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. फिर हमें टू डिलीट द फॉल्स काउंटिंग हम क्या करेंगे, जितने भी ग्रुप की साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड लगा लेंगे. तो 2 ग्रुप साइज सेम है तो 2 बार 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर लेंगे. सो दिस विल बी आवर डिवीजन फॉर दिस केस. नाउ वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट. तो हम क्या करते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से. तो लेट्स से एक ऐसा पिक्चर है कि ये 4 रूम्स हैं आपस में, सिमिलरली 4 रूम्स हैं. तो पहले रूम में पर्सन 1 गया, सेकंड रूम में इस तरीके से 6 लोगों को हमने एलोकेट कर दिया. तो इन 6 लोगों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आपस में, 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास इतने पॉसिबल ग्रुपिंग पॉसिबल हो, अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल. तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. यू कैन रीट्राई बाई योरसेल्फ. एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एडवांस में ऑलरेडी पूछा गया है. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. The total number of ways in which 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons so that each person gets at least 1 ball. तो इसमें भी क्या आ रहा है, एक एटलीस्ट 1 बॉल एक पर्सन को मिलना चाहिए. टोटल कितने पर्सन हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 3. तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं, 5 बॉल्स हैं. तो 5 बॉल को हमें 3 लोगों में बांटना है. कितने ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं एक बार. अगर हमारे पास टोटल 5 बॉल्स हैं, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पर्सन्स. तो कितने की पॉसिबिलिटी है सच दैट कि एटलीस्ट 1 सबको मिलना चाहिए. तो लेट्स से अगर हम पर्सन 1 को अगर 1 देते हैं, इसको भी 1 देते हैं, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3. और कुछ पॉसिबिलिटीज़ है क्या, 2-2-1 कर सकते हैं, राइट. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 बॉल्स को हम कैसे बांट सकते हैं, किसी एक को 2 दे देते हैं, सेकेंड वाले को भी 2 और थर्ड वाले को 1 दे सकते हैं. सो हमारे पास ये 2 केसेस पॉसिबल. अगर हम किसी को 3 दे देंगे तो 3, 1 और 1. अच्छा, वो ऑलरेडी हो चुका है. और क्या कर सकते हैं, 4 अगर दे देंगे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 6 हो जाएगा टोटल, अगर 1-1 भी देंगे तो. दिस इज द 2 केसेस विच आर पॉसिबल फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. केस 1, दिस इज केस 2. तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप कर लिया कि हमने ग्रुप का साइज अपना सिग्निफाई कर लिया. नाउ वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स, दैट इज डिवीजन. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल. अब हम क्या करेंगे, फॉल्स काउंटिंग को डिलीट करेंगे यहाँ से. तो टोटल 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसका साइज सेम है, तो वी विल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवीजन निकाल लेंगे. ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल. सिंस टू ग्रुप साइज आर सेम, सो वी विल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. तो ये हमारे पास डिवीजन आ गया अलग अलग केसेस के. सिंस वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पर्सन, तो मैं एक पिक्चर लिखता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल बनाते हैं. तो हमारे पास कितने पर्सन को बांटना है, 3 लोगों में बांटना है. तो लेट से बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, लेट से एक बॉल रख दिया है, बॉल 1, इसके अंदर बॉल 2, इसमें भी 1 ही डाला है, और इसमें हमने 3 बॉल डाल दिया. तो लेट से B3, B4 और B5. तो ये 3 बॉक्स हैं, इस तरीके से मैं रख दिया. हमें 3 लोगों में बांटना है. द पर्सन आर लेट से A, B एंड C. तो यहाँ पे हो गया A, B और C. तो एक अरेंजमेंट क्या हो गया कि हमने 3 बॉक्स बनाए, जिसके अंदर पहले बॉक्स में हमने एक बॉल डाला, दूसरे बॉक्स में हमने 1 बॉल डाला, और थर्ड बॉक्स में हमने क्या किया, 3 बॉल डाल दिया. हमने क्या किया, 3 लोगों को बुलाया, इनके सामने खड़ा कर दिया. नाउ हम इन 3 लोगों को कितने तरीके से बांट सकते हैं ये बॉल, 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि दिस 3 पर्सन कैन बी अरेंज बाय 3 फैक्टोरियल वेज. तो हमने इनको क्या किया, इस तरीके से 6 वेज में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब हमारे पास इस तरीके का ग्रुपिंग हो. नाउ हाउ मेनी ग्रुपिंग्स वी हैव, दिस प्लस दिस. हम क्या करेंगे, ये ग्रुपिंग को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हमारा क्या, जो ये हमने बनाया है, ये वन ऑफ द पॉसिबल केसेस है. सिमिलरली हमारे पास कितने केसेस हैं, ये प्लस ये. तो हम क्या करेंगे, फाइनल कितना जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू इसका डिवीजन प्लस इसका डिवीजन मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल, इसकी हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस दिस डिवीजन प्लस दिस इंटू 3 फैक्टोरियल. और ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2. ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 टू 12 दैट इज 10 प्लस 4 दूनी 8, 4 टू 8 डिवाइड बाई 120 है तो कितना हो जाएगा, 8 1 8, 4 0 5 15 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट विल बी 150 वेज.
तो 150 वेज विल बी द फाइनल आंसर। तो हमने क्या देखा इसमें, हमारे पास क्या दिया था कि हमारे पास 5 डिफरेंट बॉल्स हैं और वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दोज 5 डिफरेंट बॉल्स इनटू 3 पर्सन्स इन सच अ वे दैट ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 बॉल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रुपिंग बना लिया, कितने केसेस पॉसिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 1 3 और 2 2 1 का ग्रुप बना सकते हैं। नाउ फाइंड द ग्रुपिंग्स ऑफ फॉर दिस पॉसिबल केसेस। तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ऐसे साइज ग्रुप बन रहे हैं जिसका साइज सेम आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया, डिवीजन निकाल लिया। तो टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हम एक सैंपल लेते हैं जिसके अंदर कि हम 3 बॉक्स रखते हैं, जिसमें पहले बॉक्स में 1 बॉल है, दूसरे बॉक्स में 1 बॉल है, तीसरे बॉक्स में 3 बॉल है। लाइकवाइज कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, दिस मच। और अगर यहाँ पे 2 to 1 की बात करेंगे तो किसी में 2 बॉल होगा, किसी में 2 बॉल होगा, किसी में 1 बॉल होगा, तो उसके इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है ग्रुपिंग्स। तो हम क्या करेंगे, फाइनली दोनों ग्रुपिंग्स को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल टू गेट द फाइनल आंसर। So 150 is the right answer. Let's discuss the JEE main questions which has been asked in 2021. The question is the students S1, S2 up to S10 are to be divided into 3 groups A, B and C such that each group has at least 1 student and the group C has at most 3 students. Then the total number of possibilities of forming such groups is. अब यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है कि लास्ट वीडियो क्वेश्चन में क्या था, जो मैंने होटल वाला क्वेश्चन देखा था उसमें था कि एटमोस्ट 2 स्टूडेंट या फिर एटलीस्ट 1, बट वो सब पे अलाउड था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ कंडीशन थर्ड पे अलाउड है कि जो थर्ड ग्रुप बनेगा उसमें एटमोस्ट 3 स्टूडेंट होंगे। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। इसमें क्या हो रहा है कि पहला स्टूडेंट ऐसा है, अच्छा अगर इसमें हम ग्रुप बनाने जाएंगे 3 लोगों का, टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स A, B एंड C। हमें बेसिकली 3 ग्रुप बनाना है A, B और C। इस तरीके से बनाना है कि सच दैट एटलीस्ट 1 स्टूडेंट एंड द ग्रुप C, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट अच्छा इनके पास एटलीस्ट 1 होना चाहिए, दैट इज 1 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एटमोस्ट 3 आ रहा है, तो अगर एटमोस्ट 3 है अगर लेट से, तो हमारे पास टोटल 10 है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 में से 2 लोगों को बांटना है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर यहाँ पे एटमोस्ट 3 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग तो बना सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो ग्रुपिंग करके सॉल्व करेंगे, बट वो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आप देखो तो लेट्स से अगर हम पहले केस में क्या करते हैं, ये यहाँ पे A और B और ये से 3 ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने बच रहे हैं, सॉरी एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर 3 लोग पॉसिबल हैं थर्ड ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लेट से 1 लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 में से हमने 2 लोगों को बांटना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 4 5 या फिर 3 6 या फिर 2 और 7 या फिर 1 और 8। तो ये तो हो गया 1 के लिए। जब हम यहाँ पे 2 लोगों को रखा ग्रुप C में अगर हम 2 लोगों को देते हैं तो टोटल 8 लोग बच रहे हैं, दैट वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग A एंड B। तो 8 लोग हम कैसे बांट सकते हैं, 2 और 6, 1 और 7, 3 और 5, 4 एंड 4। तो ये सारे केसेस बनेंगे और 3 के लिए अलग से बनेगा। सो यू कैन सी हाउ मच कैलकुलेशन वी नीड टू डू व्हाइल सॉल्विंग बाय ग्रुपिंग्स। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी, अगर हमारे पास ऐसे केसेस दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 लोगों में 3 ग्रुप बनानी है बेसिकली। सो लेट्स से ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप C। तो यहाँ पे ग्रुप C में क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक लोगों को बिठा दिया तो टोटल कितने लोग बच रहे हैं, 9 लोग, टोटल 9 स्टूडेंट बच रहे हैं। लेट्स से S1 से लेके S9 तक लोग बच रहे हैं, दैट वी नीड टू लेट देम सीट ओवर पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब 9 लोगों को डिवाइड बांटना है, हमें यहाँ पे बिठाना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि हम यहाँ पे पहले बच्चे को उठाएं, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे A पे बैठ जाए या फिर B पे बैठ जाए, राइट। तो उसके पहले बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, लाइकवाइज सेकंड बच्चे के पास भी 2 ऑप्शन। तो इस तरीके से 9th वाले के पास भी 2 ऑप्शन है। टोटल कितने बार हो जा रहा है, ये 9 टाइम्स। हमने देखा था वो वाला प्रॉब्लम R का पावर N वाला, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि अगर 5 किताब है, सॉरी 10 किताब है, 3 लोगों को बांटना है अगर हमें, तो हम किससे कर रहे थे, उसको R के पावर N पे लगा रहे थे फॉर्मूला। सिमिलरली हियर अगर हम देखें तो हमारे पास 9 बच्चे हैं, 2 सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम पहले बच्चे को उठाएं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, मतलब पहले बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पे बैठ जाए या फिर यहाँ पे बैठ जाए। लाइकवाइज सेकंड बच्चे के पास भी 2 ऑप्शन है, लाइकवाइज 9th वाले के पास भी 2 ऑप्शन है। तो कितनी बार हो गया, 9 टाइम्स, दैट इज 2 का पावर 9। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से आ जाएगा, दैट इज 1 कितनी बार आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, 10।
तो 10 में से किसी एक को चूज करना है हमें, जो कि हमें पॉइंट सी पे बैठेगा। उसके बाद कितना बच रहा है, 2 का पावर 9। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी केसेस होंगे जब ए पे कोई भी ना आए और बी पे सारे 9 के 9 बच्चे बी वाले पोजीशन पे आ जाए, या फिर सारे बच्चे ए वाले पोजीशन पे आ जाए और बी वाले पोजीशन पे कोई भी बच्चा ना आए। तो कितने केसेस हमें रिमूव करने पड़ेंगे, 2 केसेस। 2 का पावर 9 माइनस 2, दिस विल बी द केस 1 वेयर पोजीशन सी विल बी टेकिंग 1 स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 2 लोगों को बिठा दें, अगर लेट से हम यहाँ पे 2 लोगों को बिठा दें, तो हमारे पास कितने सीट अवेलेबल, कितने बच्चे अवेलेबल हैं, 8 स्टूडेंट्स, लेट से फ्रॉम S1 टू S8। अब हमारे पास 2 सीट खाली है, 8 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चे के पास कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। तो पहली बात यहाँ पे 2 लोगों को चूज करना है, तो यहाँ पे जाएगा 10C2 मल्टीप्लाई बाय, इनके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे 8 लोगों में से 2 लोगों को बिठाना है, सॉरी 8 स्टूडेंट्स हैं, 2 सीट बिठाना है। तो फर्स्ट स्टूडेंट आया, उसके पास 2 ऑप्शन है, लाइक वाइज सेकेंड आया, उसके पास भी 2 ऑप्शन है, लाइक वाइज 8th वाला स्टूडेंट आएगा, उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे बैठे या तो यहाँ पे बैठे। द ओनली केस दैट वी नीड टू रिमूव इज, अगर सारे के सारे बच्चे आके ए वाले पोजीशन में बैठ जाए, यहाँ पे कोई ना आए, या फिर सारे के सारे बच्चे आके इस पे बैठ जाए, यहाँ पे कोई ना आए, तो ये 2 केसेस हमें रिमूव करने पड़ेंगे, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड दैट एटलीस्ट 1 स्टूडेंट शुड बी देयर इट एट एवरी प्लेसेस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का पावर 8 माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड केस, जब पोजीशन सी पे 2 स्टूडेंट आ रहे होंगे, करेक्ट। नाउ द थर्ड केस इज कि लेट से यहाँ पे 3 पोजीशन है ABC, यहाँ पे 3 स्टूडेंट आ गए पॉइंट सी पे, और हमारे पास 2 सीट बच रही है ए और बी की, 2 ग्रुप बच रहा है ए और बी, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट बच गए टोटल, 7। अब साथ में पहले स्टूडेंट के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, सेकंड वाले के पास भी 2 ऑप्शन, लाइक वाइज 7th वाले के पास भी 2 ऑप्शन, टोटल 2 का पावर 7। द केस वी नीड टू रिमूव इज, यहाँ पे सारे बच्चे आ गए होंगे, यहाँ पे कोई नहीं आया होगा, या फिर सारे बच्चे इस पे आ गए होंगे, यहाँ पे कोई नहीं आया होगा। वी नीड टू रिमूव दिस 2 केसेस, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 10C3, मतलब ये 3 लोगों को लाने के लिए कितना तरीका हो जाएगा, 10C3, कोई भी 3 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद इन दोनों को अरेंजमेंट करने कैसे कर रहे हैं हम लोग, 2 का पावर 7 माइनस 2, 2 टू द पावर 7 माइनस 2। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तीनों केसेस को। इट वॉज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन बिकॉज you can't solve by forming the groups because the calculation will be too high and you will spend much time in that. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10C मतलब 10 इंटू 2 का पावर 9 की वैल्यू हो जाएगी आपका, 2 का पावर 6 की वैल्यू होती है 64, तो 7 की हो जाएगी 128, 8 की हो जाएगी, ऐसे करते हैं, 2 का पावर 7 की वैल्यू होती है 1/128, तो 128 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 दैट इज 11, कैरी 1, 4 1 जा, तो 512 हो जाएगा बेसिकली। तो 512 माइनस 2 510 हो जाएगा। तो पहला केस में कितना आ जाएगा, 10 इंटू 510, यहाँ से आ जाएगा आपका 10C2 का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 5/2, सॉरी 10 इंटू 9/2, ये आ जाएगा आपका 2 का पावर 8, 256 माइनस 2 दैट इज 254। कैलकुलेशन पार्ट है बस यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 9 इंटू 8/3 फैक्टोरियल दैट इज 6। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 7 का मतलब हो जाएगा 256 का आधा दैट इज 128, तो 128 माइनस 2 124। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस, कितना हो जाएगा यहाँ से 5100 प्लस यहाँ से आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 254 प्लस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 से आएगा तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाई 124। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। हमारे पास टोटल 3 सीट्स अवेलेबल थी, हमें बेसिकली 3 ग्रुप में बांटना था 10 बच्चों को, जिसके अंदर कंडीशन दिया था कि सीट ग्रुप नंबर 3 में मैक्सिमम 3 बच्चे आ सकते हैं और बाकी ए और बी पे भी एटलीस्ट 1 होने चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले सी पे एक बच्चे को बिठा दिया। तो एक बच्चे को बिठाने के कितने तरीके हैं, 10C1, किसी भी एक बच्चे को बिठाने का 10C1 तरीका हो जाएगा। उसके बाद बाकी 2 ग्रुप में कैसे बांटेंगे हम 9 लोगों को, तो क्योंकि 9 बच्चे हैं तो हमारे पास पहले ग्रुप पे पहले बच्चे के पास 2 ऑप्शन, लाइक वाइज सेकंड वाले के पास भी 2 ऑप्शन, तो 2 का पावर 9। हमें दो हटाने के पड़ेंगे केसेस, कौन से,
जब सारे बच्चे बी पे आ जाएं या फिर सारे बच्चे ए पे आ जाएं। तो लाइकवाइज हर केसेस में हमने क्या किया, 2 का पावर जितने बच्चे बच रहे हैं -2, 2 का पावर यहाँ पे 8 बच्चे बच रहे हैं तो 2 का पावर 8 -2, यहाँ पे टोटल 7 बच्चे बचेंगे आफ्टर लेटिंग 3 स्टूडेंट्स सिट ऑन द थर्ड ग्रुप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7 -2। सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। So this was the last question that we need to discuss in today's lecture. So I will be giving some of the questions to be done by yourself to improve your concepts very well. We have taken much questions. हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए हैं आज के वीडियो के अंदर, so that कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। I have tried to take all the varieties of questions so as to get all the concepts towards you, so that you can be able to solve questions. Any question that can be asked in questions in examination, you will be able to solve it. So let me give you some of the questions to be done by yourself. So your homework is this much you need to do by yourself. So to practice better, so you can see your questions, you can take the screenshots or you can write the questions by yourself. So as of now we have completed all the topics related to distinct objects, distribution and division. तो हमने जितने भी डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वो हमने कवर कर लिया है। सो नाउ द टाइम इज टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ एंड यू नीड टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एज पॉसिबल, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी टेकन ऑल द वेराइटीज एंड टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी रिवॉल्व अराउंड दिस टॉपिक. Once you have completed this video, this lecture very carefully, I'm sure you can be able to attempt any questions related to this topic, whether it is being asked in JEE Main or in JEE Advanced. So as of now, keeping this much, meeting you in next video. Till then, revise all the concepts, go through all the theories parts and the theorems which we have discussed in starting videos. So you need to be very much careful while you are solving questions. So because permutation and combinations में क्या होता है कि language बहुत important role play करता है. So you should read the questions very carefully, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, राइट? बिकॉज समटाइम्स इट विल बी हिडन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. You need to decide whether you need to distribute the groups or not. So you will understand this by reading the questions. So आपको क्वेश्चन जो पढ़ने हैं बहुत ध्यान से पढ़ने. So it will be better जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी in all the aspects. So meeting you in next video. Till then, take care. Bye bye.